जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। मैं अपना सत्संग शुरू करने तो पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। अ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने ਉਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬ੍ਰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇੰਦਰਾਪੁਰਮ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਮੈਟਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰੀਫਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਬੈਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕੈਨਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੌਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਟਾਈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਬਰੀਫਕੇਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਟਰੋ ਲੈ ਲਈ ਔਰ 2 ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਆਪ यहाँ बैठ जाओ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸ ਨੂੰ ਬਈ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁੰਮੀ ਅਤੇ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਕਿਆ ਢੂੰढ रहे हो आप? मैं क्या बेटा मेरा पर्स नहीं दिखाई दे रहा। कहती नहीं आंटी आप किन्हीं 2 चीज़ों के साथ आए थे, आपके पास पर्स नहीं था। मैं नेक्स्ट स्टेशन ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਕੇ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਕਟ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ, ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੈਂਗਲਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹ 2 ਬੈਂਗਲਸ ਮੈਨੂੰ ਔਰ 2 ਬੈਂਗਲਸ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਬੈਂਗਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਗਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਥੈਂਕਫੁਲੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਆਪਕਾ ਪਰਸ ਪੜਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਸੇਫ ਹੈ, ਆਪ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 10-12 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਸੇਮ ਬੈਂਗਲਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੈਂਗਲਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਰਸ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪੈਰਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ।
मैं ये ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सभी के सत्संग शेयर करती हूँ। दूर दूर से मुझ तक गुरु जी सत्संग को पहुंचाते हैं, और ये सेवा मैं पिछले काफी लंबे समय से कर रही हूँ। और अब गुरु जी के हुक्म से एक सत्संग मंथ में शुरू करने जा रही हूँ, और वो सत्संग हम सब के कल्याण के लिए गुरु जी करवा रहे हैं, और इसमें शामिल हैं आप सब लोग। हाँ जी, क्योंकि ये मेरा सुमन आंटी का पर्सनल सत्संग नहीं, ये गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल के प्लेटफॉर्म के लिए जितने भी सदस्य हैं उन सभी का सत्संग है ना। आप सभी का सत्संग है संगत जी। इस प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी सदस्य हैं, और यहाँ से ब्लेसिंग्स पाने के लिए आप गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, आप सत्संग को शेयर करते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, है ना, तो आप सुना भी जरूर कीजिए। अभी जैसे आंटी ने अपना सत्संग भेजा, आपने सुना। पंजाबी मुझे नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। हाँ, सुनती हूँ, ध्यान दे देकर कुछ कुछ समझ में आ जाती है, पर बोलना बिल्कुल नहीं आता। गुरु जी कुछ वो भी मैसेज शेयर करवाते हैं, पंजाबी में होते हैं, तो मैं पढ़ के आगे शेयर करती हूँ कि हाँ, गुरु जी की ब्लेसिंग है, आगे संगत तक पहुंचानी है, गुरु जी का हुक्म है, तो मैं पहुंचा देती हूँ। और जैसा गुरु जी मुझे हुक्म देते हैं, आज्ञा देते हैं, वैसा मैं करती हूँ। और संगत जी, इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन भी करती हूँ कि आप जब भी सत्संग शेयर करें तो कृपया करके सुना जरूर कीजिए। कई बार सत्संग शेयर हो जाता है और आंटी फिर भी बोलते हैं कि आपने सत्संग शेयर नहीं करा। संगत जी, बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, तब सत्संग शेयर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे सत्संग आते हैं, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सत्संग को सुनेगा जरूर। और ये सत्संग गुरु जी के हुक्म से आपके पास पहुंचाए जाते हैं, और आप भी अपनी छोटी सी सेवा जरूर दीजिएगा कि सत्संग को आपको सुनना भी है और आगे शेयर भी करना है ना, क्योंकि आपके माध्यम से गुरु जी किसी संगत का कल्याण करना चाहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना भर भर के कीजिएगा, लिख दीजिएगा। यदि आपको भी सत्संग को शेयर करवाना है तो सिंगल ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरु जी ने चाहा तो आपका सत्संग जरूर शेयर हो जाएगा। जय गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें। और ये जो एक छोटा सा प्रयास गुरु जी ने और ऐड कर दिया है शुक्राना सत्संग कराने के लिए, सर्वदा भला, इसके लिए भी आप सबका धन्यवाद। और अब आप सभी शामिल हो जाइए। जय गुरु जी। और गुरु जी से प्रार्थना है कि गुरु जी, जो इतनी बारिश हो रही है उसको आप अब रोक दीजिए। जगह जगह बाढ़ का माहौल है, उसे समाप्त कीजिए। सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। संगत जी, आप भी सबके कल्याण के लिए गुरु जी से अरदास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। गुरु जी सर्वदा भला करें। जय गुरु जी। गुरु जी सबको खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और हम सभी यूं ही आगे बढ़कर गुरु जी की सेवा, सिमरन, सत्संग करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली, गुरुपा की बेटी, आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज संडे है, मतलब गुरुवार है, नहीं सॉरी आज रविवार है, तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुपाल संगत जी। तो आज आज का दिन पूर्णिमा भी है, आज मतलब चंद्र ग्रहण भी है, जो 12 बजे से अभी लगने वाली है। तो मैं सब मतलब भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और गुरुपा से भी बोलती हूँ कि हमारे सबको बहुत मतलब अच्छा फल मिले, सबके जीवन में खुशियाँ आए, सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे,
सबका मनोकामना पूर्ण हो और सब हर मतलब छोटे बड़े जो दुख है वो सारे चले जाएं, सबके घर में खुशियां आए, क्योंकि ये महीना त्योहार का महीना है। बस सबका अच्छा हो, सर्वदा भला हो, सबका मंगल हो। और गुरुपा आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और आपको हर दिन, हर समय, हर पल, हर रात, हर हर चीज़ के लिए आपको बहुत-बहुत शुक्राना। सबसे बड़ी बात है कि आपसे हम मिले और आप मेरे पापा बने, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मतलब ये सोच भी नहीं सकती, मतलब मैं मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप हमें मिले 2024 जून में और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन आपने मेरा हाथ पकड़ा और वो दिन आज भी मुझे याद है। उस दिन मैं बहुत मायूस बैठी थी, बहुत डिप्रेशन था मेरा, मतलब दुखों का पहाड़ जैसे टूट पड़ा था चारों तरफ से। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो उसी दिन आपने मेरा हाथ पकड़ा और उसी दिन मैं यूट्यूब से जॉइन हुई। उससे पहले यूट्यूब में मैं उतना नहीं ध्यान देती थी। मतलब बाकी सारी चीज़ें देखती थी, लेकिन सत्संग वगैरह मेरे उसमें नहीं आते थे। लेकिन जिस दिन आपसे मैं जुड़ी 2024 जून से, उसी दिन से मैं यूट्यूब में ये सत्संग वगैरह सुनना स्टार्ट कर दी और दूसरे दिन ही पापा आप ही ने मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए बोले, मतलब शुक्राना करने के लिए बोले और नंबर भी मेरे को बताया कि कहाँ कहाँ से मिलेगा। जो भी आज जो भी मैं शुक्राना कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, सब आप ही की वजह से पापा। आप ही ने मेरे को जगह दिखाए। आप ही ने बोला कि यहाँ सत्संग शेयर करो, शुक्राना करो, तो तुम्हारा काम बनेगा। अच्छे धीरे धीरे तुम आगे जाओगी। जो तुम्हारी कठिनाई हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, वो सब सत्संग सुन सुन के तुम्हारा ठीक होगा। ये सब आप ही ने सिखाया पापा। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। और आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, वो आपके लिए है। आप ही ला के खड़े किए हो यहाँ पर। और आगे भी जो होगा वो भी आप ही के हाथ पकड़ के मैं करूँगी, क्योंकि बेटी तो आप ही की हूँ, तो आप ही करोगे। पापा बेटियों का हाथ पकड़ के ही ले जाते हैं, तो आपके भरोसे ही हूँ सब कुछ। बाकी गलती तो हम लोग करते हैं, जो भी गलती कर रहे हैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा पापा, संगत जी। बोलने में कुछ भी भूल चूक हुई हो, माफ़ कर दीजिएगा। और आज चंद्र ग्रहण में सबका मतलब सब कुछ अच्छा हो, मतलब सब चंद्रमा, मतलब हमारे जो देवता हैं, चंद्र देवता, वो हमारे लिए, हमारे सबको, हम सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। और जो भी है, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका भला हो, सर्वदा भला हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस टाइम बहुत कुछ होता भी है, नकारात्मक चीज़ें भी बहुत सारे होते हैं। तो पहले मैं थोड़ा-थोड़ा डरती थी, अभी नहीं डरती, क्योंकि पापा है, गुरुपा है हमारे, हमें गुरुपा सब सँभाल लेते हैं हम हमारा। तो इसलिए संगत जी, अ, सबसे मैं बोलती हूँ, जिन-जिन को मतलब इस सब कष्ट से झेलना पड़ता है, ये ब्लैक मैजिक वगैरह, ये टोना टोटका से, तो मैं ये बोलूँगी कि हमारे साथ गुरुपा हैं, पापा हैं, बस कोई डरने की बात नहीं है, सब वही ठीक करेंगे। और माँ है, हमारी माँ आदिशक्ति हमारे साथ है, तो कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता, जितना भी कुछ कर ले। और हमारा जो काम है, हम जिसके लिए चुने गए हैं, हम आए हैं, तो वो काम हमें करना है आगे जाके। और पापा के साथ ही, मतलब गुरुपा के साथ ही हमें मिलके सब कुछ करना है। और हमें पता है कि गुरुपा हमारे साथ ही रहते हैं। पापा हर टाइम हमारे मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो सत्संग हो, चाहे वो शुक्राना हो, चाहे जो भी हो। जो हम शब्द सुनते हैं, हर चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो बस ऐसे ही पापा हमारे साथ रहिए, पूरे संगत परिवार के साथ रहिए, हम संग रहिए। बस सबका भला हो पापा, सर्वदा भला हो। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ मैं बोलूँगी, पापा के साथ रहते-रहते बहुत कुछ सीखा है। ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव इतने सारे आए हैं, उसमें जो धैर्य रखना, ये चीज़ पूरे पापा से सीखा है। और गुस्सा जो मेरे में बहुत था, क्योंकि वो गुस्सा मेरे में ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि मुझे दिशा नहीं मिल रही थी और बहुत डिप्रेशन में मेरा गुस्सा भी बढ़ गया था। वो चीज़ गुरुपा ने कम कराया। गुरुपा को पता है कि मेरा गुस्सा बहुत बेकार है, भयंकर वाला है। तो वो चीज़ बोलते हैं गुरुपा कि तेरा गुस्सा इतना बेकार है, उसको पहले तू काबू कर। वो चीज़
गुरुपा ने मेरा काबू करवाया। और धैर्य, मेरे में धीरज था, लेकिन अभी गुरुपा की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया। और वही चीज़ होता है ना, कहावत है, जो जितना धैर्य रखेगा उनका काम उतना अच्छा होगा। तो वो चीज़ पापा से सीख रही हूँ। अभी भी बहुत कुछ सीखना है, सीखने का कोई अंत नहीं होता है। तो अभी भी बहुत कुछ सीखना है, अभी भी और भी धैर्य रखना है। बाकी जो होगा आप ही करोगे पापा, आपके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो मैं बोलती हूँ। आप जो हुआ है, जो हो रहा है, जो होगा, वो सब आप ही करोगे। बस इतना ही पापा आज। तो संगत जी धैर्य रखिएगा, सबका सब कुछ होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हमारे साथ पापा है, हमारे साथ गुरुपा है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। और हमारे साथ माँ आदि शक्ति है, जिनका हाथ हमारे सर के ऊपर है। बस और क्या चाहिए, सब मतलब गुरुपा और इनके जो ब्लेसिंग हमें जो मिलते हैं, तो इससे हम और भी मजबूत हो जाते हैं। बस ऐसे ही हम धैर्य रख के सब काम करें, और जो आगे जो हमें देना है वो दे पाएँ। इतनी दात बख्शना गुरुपा कि सब कुछ कर पाएँ सबके लिए। और आज इतना ही मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के लिए लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा, आप बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, सर्वदा भला हो। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुक्राना पापा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय धरती माता, जय ब्रह्मांड पिता, जय कुलदेवी माता, जय कुल देवता, जय हमारे पूर्वजों, आपकी जय हो। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब देवी देवताओं को और हमारे पूर्वजों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी सबको राम राम। मेरे प्यारे गुरु परिवार को सबको राम राम। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्ते, सबको राम राम और सबका शुक्राना। संगत जी 5:03 हो रहे हैं और मैं अपने प्यारे गुरु जी के रूम में बैठकर अपने प्यारे गुरु जी का सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी देवी देवताओं को, पूर्वजों को कोटि कोटि प्रणाम। जय हो, जय हो मेरे मालिक। बोल सच्चे दरबार की जय, मेरे महाराज की जय, मेरी महामाई भगवती माँ की जय, बगलामुखी माँ की जय, हंसवाहिनी माता आपकी जय हो, लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी जय हो, गणपति महाराज आपकी जय हो, जय हो, जय हो। संगत जी मैं अपने बाबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे बाबा ने हमारे घर का एक एक कष्ट, हमारे घर के एक एक सदस्य का सबका कष्ट, बीमारी सब काट दिए हैं। मैं इसके लिए अपने बाबा का तहे दिल से, अपने पूरे परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने पीहर वालों की तरफ से, ससुराल वालों की तरफ से, सबकी तरफ से अपने बाबा का शुक्राना करती हूँ और सबके गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। बाबा माफ़ कर देना, हमारे पूर्वजों श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, आपकी भी जय हो। आप भी माफ़ कर देना अपने बच्चों को। अगर हम पे कोई गलती भूल चूक हो रही हो, जाने अनजाने किसी की आत्मा दुखाई हो, किसी का दिल दुखाया हो, या कोई हम पे गलती भूल चूक हुई हो, तो हमें माफ़ कर देना गुरु जी, हमें माफ़ कर देना पूर्वजों, आपकी जय हो। हम आपसे आपके चरण कमलों में बैठकर दंडवत प्रणाम करके हम माफ़ी मांगते हैं। गुरु जी हमें माफ़ कर देना, हमारे जो अगले पिछले किए हुए कर्म है हमारे, हमें माफ़ कर देना, हमारे गुनाह माफ़ कर देना, हमारी गलतियों को माफ़ कर देना गुरु जी। अपना बच्चा समझ के माफ़ कर देना गुरु जी। आगे जो जीवन हमारा बहुत अच्छा बीते, हम किसी का बुरा ना सोचें, बुरा ना करें, बुरा ना देखें, बुरा ना बोलें गुरु जी। हमें इतना ब्लेस कर देना कि हम किसी की मदद कर दें, हम चाहे कोई पशु पक्षी जानवर है, चाहे कोई इंसान है, हम सबकी मदद करें। हमें इतना अच्छा बना देना मेरे गुरु जी, इतना अच्छा बना देना कि दुनिया हमें याद करे, इतना अच्छा बना देना जब इस दुनिया से जाएं हम, तो दुनिया हमारे लिए आंसू बहाए। इतना अच्छा बना देना मेरे गुरु, मेरे प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। एक और दिन की दात बख्शने के लिए, हमारी सबकी रक्षा करने के लिए, ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए, दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए, मारण क्रिया से बचाने के लिए, 2 वक्त की रोटी देने के लिए, हर हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। रोजी रोजगार लगाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके चरणों में लगने के बाद हमारी ज़िंदगी संवर गई, इसके लिए शुक्राना करते हैं बाबा। हमारी ज़िंदगी जीवन सुधार दिया आपने। मेरे पति पे इतना तगड़ा वशीकरण था संगत जी, अड़ोसियों ने पड़ोसियों ने, और ये जो हमारे बगल में पति पत्नी रह रहे हैं ये तो हमारे पीछे ही लगे हुए हैं हाथ धो के कि कैसे न कैसे इनका बुरा हो। पर मेरे गुरुजी, जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारा बुरा कैसे हो जाएगा। वो पलटवार इन्हीं पर पड़ता है और इन्हीं का बुरा हो रहा है संगत जी। फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे, फिर भी बाज नहीं आ रहे। ये लोग बाज आ जाएंगे जब इनके पाप का घड़ा भर जाएगा। अभी इनके पाप का घड़ा थोड़ा खाली है, इसीलिए मेरे गुरु महाराज थोड़ा सा चुप हैं। तो संगत जी, इतनी रक्षा करते हैं हमारे गुरु महाराज, हमारी बहुत रक्षा करते हैं, बहुत रक्षा कर रहे हैं। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हर पल हमारी रक्षा करते हैं। हमारे घर में एक एक सदस्य की रक्षा करते हैं, एक एक के साथ रहते हैं। हम मत्था टेक के बाबा से प्रार्थना करके हम अपने साथ ले जाते हैं। कहीं भी ले जाते हैं तो हम खेतों में भी खूब घूमने जाते हैं तो बाबा को मत्था टेक के लेके जाते हैं, बाबा चलो घूम के आते हैं खेत में। बाबा खुश होकर चलते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं बाबा घूमने खेतों पे, और हमारे घर में साक्षात रहते हैं। और गुरु जी, हमारे घर में कोई ज़ोर से बोलता है चिल्लाता है तो बाबा कहते हैं पुत्र तू चिल्लाया ना करा कर, ज़ोर से ना बोला कर, मैं तेरे घर में साक्षात हूँ। मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ बाबा। मैं ज़ोर से चिल्ला देती हूँ कभी कभी, मेरी आदत है, क्योंकि ज़ोर से बोलना मेरी आदत है बाबा। इस गंदी आदत को बदलो बाबा। जब सब कुछ बदल रहे हो आप, हमारा जीवन बदल दिया आपने, तो ये वाणी भी बदलो हमारी। इतनी कटु वाणी है, कड़वी वाणी है हमारी, इस वाणी में मिठास दो बाबा। और जो ज़ोर से चिल्लाती हूँ मैं सॉरी संगत जी, और जो ज़ोर से चिल्लाती हूँ मैं, उसमें थोड़ा धीरे का स्वर करो गुरु जी। सब कुछ बदल दिया हमारे अंदर का बाहर का, हमारा जीवन बदल दिया, जीवन संवार दिया। शुक्राना मेरे मालिक, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। माँ भगवती मेरी कुलदेवी माता, आपका भी शुक्राना। मेरी कालका माई, मेरी पार्वती माई, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारी रक्षा करने के लिए बाबा। संगत जी, बाबा बताते हैं कि तू माँ का शुक्राना करा कर, कुलदेवी माता का। कुलदेवी माता तुम्हारी बहुत रक्षा करती है, दुष्ट आत्माओं से बचाती है और कदम कदम पर तुम्हारा साथ भी देती है। शुक्राना कितना कर, और माँ का शुक्राना कितना कर, और माँ से माफ़ी मांग ले। तो कुलदेवी माता, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरे से मेरे परिवार से कोई गलती भूल चूक हो रही है तो माँ, मैं माफ़ कर दो अपना बच्चा समझ के। माता रानी, माँ तो विनम्र होती है, माँ तो अपने बच्चे की हर गलती माफ़ कर देती है। माँ, हमें माफ़ कर दो। कुलदेवी माता, मेरी भगवती माता, हम पे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा करो। अपने बच्चों को, और अपने बच्चों को खाने नहाने को दो, सुख संपत्ति दो, ऐसा ज्ञान दो जो हम अच्छे कर्म करें, किसी की आत्मा न दुखाएं, किसी के साथ बुरा ना करें। हम अब तक तो करा नहीं बाबा किसी के साथ, दुनिया ने हमें ही सताया है अब तक, हमें ही सताया, हमें ही परेशान करा, और अब तक कर रहे हैं बाबा। हम बाहर भी बैठ जाते हैं तो ऐसे कुर्छेवली चेपते हैं हम पे, हमारा बैठना दूभर कर देते हैं, फिर हम उठ के अंदर आ जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर लेते हैं बाबा। इन दुष्ट आत्माओं से कब पीछा छुटाओगे, इनसे पीछा छुटाओ बाबा। जब आपने सारा जीवन बदल दिया तो इन इन दुष्ट आत्माओं को भी दफ़ा करो दूर, हमारे हमारी रक्षा करो इनसे बाबा। और चेवली छेकती हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है इनका जब भी, और क्या बताएं बाबा। बस आपको आपको सब पता है गुरु जी, बस हम तो आपके शरण में, हमारा ये बाल विवाह का नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, ये तो हमारे कर्म है, जो हमारे कर्म कटवा रहे हैं ये, इनका भी शुक्राना प्रभु, आपका भी शुक्राना। थोड़े बहुत जो रह गए हैं ये वो कटवा रहे हैं कर्म, तो इसके लिए मैं अपने प्यारे बाबा का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमात्मा, मुझे अमृत वेला में उठाने के लिए बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कल चंद्र ग्रहण था बाबा, 3 साढ़े 3 घंटे का चंद्र ग्रहण था। मैं तो चंदा मामा को 8 साढ़े 8 बजे ही अर्घ्य दे के मैं तो चुपचाप नीचे आ गई थी। चंदा मामा उनसे प्रार्थना करके कि ये ग्रहण किसी पे भारी ना पड़े, सब सब सुख शांति से ही निकल जाए। बस मेरे प्रभु, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य अत्यंत सौभाग्यशाली है। सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरा हर दिन मुझे तरक्की की तरफ ले जा रहा है। मेरे घर में सुख शांति, सुख समृद्धि, बरकत, अपार धन आ रहा है, और मैं अपने बाबा से, मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हैं। हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं दिन पर दिन। मेरे गुरुजी हमें हाथ पकड़कर फर्श से अर्श तक ले जा रहे हैं। मैं अपने प्यारे गुरु बाबा का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरु गुरु बाबा हमारी खुशियों का, मेरे परिवार की खुशियों का बहुत ख्याल रख रहे हैं। इसके लिए मैं अपने बाबा का तहे दिल से, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अपने सारे बच्चों की तरफ से शुक्राना, पीहर वालों की तरफ से शुक्राना, ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, बड़ी बेटी दामाद की और बच्चों की और उसकी सास बेटी की तरफ से शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे
परमपिता परमेश्वर मेरे गुरुजी हमारे गुनाहों को माफ़ करना प्रभु। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। एक और दिन की दात बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। सुबह उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है। जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई है। जय गुरु प्यारी संगत जी, जय मेरी सुमन आंटी जी, सबको जय गुरु जी। आज का सत्संग ये है कि आज गुरु जी ने मुझे, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि आज मैं तितली रूप में आकर तेरे सारे कष्ट ले जाऊंगा। तो मैं गार्डन में अपने गई तो तो वहाँ ब्लैक एंड वाइट कलर की तितली 2 बार मेरे ऊपर से गुजर कर गई। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग ये है कि आज हमारे घर में श्राद्ध था। तो एक्चुअली श्राद्ध का जितना भी सामान है वो मेरी सासू माँ ही बनाती है। क्योंकि सासू पहला हक तो नहीं का है और वही बनाती है शुरू से ही, तो हम उनकी हेल्प कराते हैं। तो वो बड़े एक होते हैं पल्ले बोलती है उनको संगत जी। तो वो क्या होता है कि ऐसे सिंपल वाले तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन उसमें क्या है बीच में एक राउंड छिद्र बनाकर बनाना होता है। तो वो तो मुझे आ नहीं रहे थे बनाने। तो मम्मा ने बोला कि या तो मेरी हेल्प करेगी, ये वाले बनाएगी। मैं क्या, हाँ मैं कोशिश करती हूँ। तो मैंने कोशिश की, मेरे से नहीं बने। तो मैंने किचन में भी गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ है। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपकी बेटी इतनी नालायक नहीं हो सकती, आप जैसे मर्जी मेरे से अच्छे अच्छे ये बनवा दो। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, गुरु ये मेरे कहने की देर है। और मैंने बोला कि अच्छा मम्मा मैं देखती हूँ। तो मैंने बनाने वो पल्ले बनाए और वो संगत जी आप मानोगे नहीं, मैंने कोई 30-40 पल्ले बनाए और वो इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने कि मैं सोच भी नहीं सकती कि वो मेरे से बन सकते हैं क्या। लेकिन वो सब मेरे गुरु जी की कृपा थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा कोल्ड हो गया संगत जी, तो सॉरी। तो मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी हमारे हैं ना संगत जी, जो भी आप मांगोगे ना वो देंगे ही देंगे, चाहे थोड़ी देर से देंगे लेकिन देंगे जरूर। क्यों नहीं देते उसी वक्त? क्योंकि वो जो आप चीज मांगते हो उसका राइट टाइम नहीं आया होता। राइट टाइम आने पर वो चीज को जरूर देंगे और जरूर देंगे। गुरु जी का स्वरूप मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे अंग संग है गुरु जी। मैंने बैक साइड पे ही लगाया हुआ है गुरु जी का स्वरूप, तो उनको देखती रहती हूँ मैं। और जब भी खाना बनाने लगती हूँ बोल देती हूँ गुरु जी अच्छा बनना चाहिए, और वो बहुत टेस्टी बनता है संगत जी। क्योंकि गुरु जी मेरे साथ रहते हैं ना 24 घंटे, इसलिए। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरु का। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। गुरु जी के मैसेज इतने अच्छे आते, इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, ऐसे लगता है कि अब ये सब कुछ मेरे साथ होने लगा है। अब मैं यही सोचती हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव होती जा रही हूँ दिन ब दिन। गुरुजी के जो मैसेज आते हैं, बीच में बहुत नेगेटिव भी आते हैं, तो वो थंबनेल ही होते हैं नेगेटिव। अंदर तो उनके जो सत्संग आता है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक ही होता है। वो है कि उनको पढ़ के थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, बाकी और कुछ नहीं होता उसमें। तो गुरु जी आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे गुरु जी। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। संगत जी, जब जब मैं सत्संग नहीं करती तो मुझे बहुत सारी बातें याद होती है कि मैं ये बोलूँगी, मैं वो बोलूँगी। बस मेरी आदत ये है कि मैं लिखती नहीं हूँ, जो मन में आया मैं बोलती जाती हूँ और गुरुजी बुलवाते जाते हैं। मैंने गुरुजी को बोला जो आप बुलवाओगे मैं बोलती जाऊँगी। तो संगत जी मैं गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरु जी अब ये बारिश वगैरह बंद करवाओ, अब बहुत फेडअप हो चुके हैं मौसम से, और देखो कितना बुरा हाल है लोगों का जान माल का कितना नुकसान हुआ है। तो गुरुजी आप आपने जो भी करना है चमत्कार तो कर ही देना है, मुझे पता है।
जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। ये सब सृष्टि को थोड़ा बहुत ख़त्म भी करना होता है, क्योंकि बढ़ती जा रही है जनसंख्या, तो उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से करना होता है। तो ये सब चीज़ें तो होनी होनी, और ये साल वैसे भी बड़ा बताया हुआ है कि खराब है, बहुत हैवी है। आज चंद्र ग्रहण है, तो आज गुरुजी के टेम्पल में मैंने बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि सूतक पड़ गया हुआ है, तो आप टेम्पल को एकदम से बंद कर दो। आज मेरे गुरुजी अंदर ही हैं, लेकिन मैंने गुरुजी का ना पासपोर्ट वाला जो स्वरूप है वो अपने पास रखा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि गुरुजी को ऐसे मैंने अंदर कर दिया हुआ है, टेम्पल के अंदर है वो। लेकिन गुरुजी का मैसेज आया हुआ था मुझे कि चंद्र ग्रहण जब हट जाएगा तो तो फिर गंगा जल पूरा छिड़कना, पूरे मंदिर में, घर में नमक नींबू डालकर पोछा लगाना, और सारी सबको स्नान स्नान करके फिर ही टेम्पल को हाथ लगाना। तो गुरुजी मैं ज़रूर ये करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर बात बताती हो मेरे गुरुपा, हर बात बताती हो गुरुपा। आपसे अरदास ये है कि मेरा गला, गुरुपा मेरी आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही, ऐसे बहुत भारी भारी निकलती है आवाज़। मेरे थायराइड को एकदम से ठीक कर दो गुरुपा। हाँ गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि तेरे अंदर मुझे कोई गांठ दिखाई दे रही है और वो कैंसर का रूप ले रही है। गुरुजी आपसे अरदास है, प्लीज़ 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 आप इस बेटी को कभी हॉस्पिटल मत पहुंचाना। मेरे डॉक्टर आप ही हो, और आपके हाथ जो हैं वो उन्हीं से मैंने सब कुछ अपनी सर्जरी करवानी है। तो गुरुजी सपने में आकर मेरे सारे रोग कष्ट खत्म कर देना। आपने बोला है कि तेरी बेटी का भी रोग और कष्ट मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। तो गुरुजी आपकी बहुत कृपा, बहुत कृपा। मेरी बेटी को भी बहुत सहन कर लिया हुआ उस बेचारी ने, अब वो बड़ी हो रही है, तो उसके इस कष्ट को निकाल दो गुरुपा। ये ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रिया करने वालों का भी खात्मा करो चंद्र ग्रहण में। मैं तो कहती हूँ जितने भी ब्लैक मैजिक वाले हैं, वो तंत्र क्रिया करने वाले, वो सारे के सारे ही ख़त्म हो जाएं, वो पानी में बह के चले जाएं, भस्म हो जाएं, वो धरती के अंदर ही, कभी बाहर ही ना आए। सच में उन लोगों का जीना आराम किया हुआ है सभी ने। तो गुरुपा मेरी आपसे यही है गुजारिश है कि हमारे घर से जो भी आप कहते हैं काला साया है, कोई नेगेटिविटी है, तो आप उसको बाहर निकालो, हमारे घर को साफ सुथरा कर दो हर तरह से। गुरुपा हमारे घर में सुख शांति रिद्धि सिद्धि का वास हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम लेती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख तंजन शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख तंजन कुटुंब शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा के मुझे संगत जी मुझे हर सत्संग में ये बोलना नहीं अच्छा लगता, लेकिन क्या करूँ, मेरे को हर मैसेज में यही आ रहा है कि जो दो औरतें हैं वो तेरे पीछे हाथ धो के मारण क्रिया करने में लगी पड़ी है, तो तू ये सत्संग सुन, तेरे कष्ट कटवा। हर हर सत्संग में मेरे बेटों के ऊपर मारण क्रिया, मेरे पति अंकल के ऊपर, मेरे पर क्यों गुरुजी, गुरुजी क्यों ये लोग समझते नहीं है। गुरुपा आप उनको बैकफायर करो ना, कि जिसके कारण वो लोग ये करना ही बंद कर दीजिए। गुरुपा उन लोग को पता चले कि ये सबसे कितनी तकलीफ होती है, हम लोग को कितनी पीड़ा होती है। मेरे गुरुपा ये भी बोलते हैं तेरे नसीब में तो बीमारी थी ही नहीं, ये सब ब्लैक मैजिक कर करके उन्होंने तुझे बीमारी दी है। तो गुरुपा उनको वहाँ ही स्टॉप कराओ ना गुरुपा, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आप मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, मेरे पियो, जगत के तारनहार हो, तो वो लोग का ब्लैक मैजिक कैसे असर कर सकता है गुरुपा, जब आप साक्षात आपका हाथ हमारे सर पे है। उनको बैकफायर करो जिसके कारण उनको पता चले कि ये सब चीज़ से कितनी तकलीफ होती है गुरुपा। जी मैंने तो हर तरह से मैंने खुद को, अपने दोनों बच्चों को, मेरे पति अंकल को आपको समर्पण कर दिया है गुरुपा। जो करना है आपको करना है, जो भी है वो आपको ही देखना है गुरुपा। मैं तो सब तरीके से आप पे छोड़ देती हूँ और बस इतना ही शुक्राना करती हूँ कि आप हर तरह से हमारी रक्षा करते हो, हमें ब्लेसिंग करते हो। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। कल जो मेरी परसों से हालत थी, इतनी ख़राब हालत थी संगत जी, कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरे गुरुपा का मंत्र जाप, जल प्रसाद और चंदन टीका, ये 3 चीज़, सिर्फ़ ये 3 चीज़ मैंने लगातार की और सुबह तक तो मैं एकदम ठीक हो गई, एकदम। और मैं गणपति के दर्शन विसर्जन में भी गई, दर्शन करने गई,
हर तरह से हम लोग कल बाहर घूमने भी गए, ये सब मेरे गुरुपा की कृपा से। मेरा बेटा जो मेरे से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, कल वो भी मेरे साथ आया, हम लोग ने बाहर बहुत एंजॉय किया। शुक्राना गुरुपा, ये आपने ही करवाया कि मेरे बेटे को इतनी सद्बुद्धि दी कि वो मेरे से अच्छे से अभी बात भी करता है और मेरे साथ अच्छे से रहता भी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मेरे हस्बैंड को भी सद्बुद्धि देने का शुक्राना, मेरे बच्चों को भी ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे भी ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और समाज में मेरा मान सम्मान हर तरह से बढ़ा है, उसके लिए गुरुपा आपका ही शुक्राना है। चाहे कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन मैं हर सांस, हर वेला, हर पल सिर्फ और सिर्फ आपका शुक्राना ही करती रहूँगी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सर्बता भला। वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गुरुपा हर पल, हर वेला, हर सांस बस आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटि शुक्राना। और जो शक्ति मेरे से रूठी हुई है, मुझे नहीं पता कौन सी शक्ति है जो मेरे से रूठी हुई है, लेकिन गुरुपा मैं आपके पास अरदास करती हूँ, उन्हें उनके पास मैं क्षमा मांगती हूँ, तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे और मेरे बच्चों को या मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाए, ना मेरे पति अंकल को। बस वो हमें क्षमा कर दे, हमसे जो भी गलती है तहे दिल से मैं सब संगत के सामने उनसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, वो जो भी शक्ति रूठी हुई है उनसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि हमसे कोई भी गलती हुई हो, मेरे पति अंकल की या मेरे बच्चों से कोई भी गलती हो, उसके लिए हमें क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी, मैं अभी इस टाइम घर की शिफ्टिंग में बहुत व्यस्त रही हूँ। इसी बीच मैंने गजानन को भी घर में रखा था, तो उनका विसर्जन भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे से हुआ। गुरुजी ने बहुत कृपाएं भेजी, मुझे बार बार कंफर्मेशन दी है अपनी उपस्थिति की। थैंक यू सो मच गुरुपा। नंबर ब्लेसिंग देने के लिए, माता रानी की नंबर ब्लेसिंग और आपकी नंबर ब्लेसिंग मुझे साथ साथ मिली। थैंक यू सो मच गुरुपा। और जब मैंने मन में सोचा कि आप मेरे साथ हो तो मुझे कंफर्मेशन दीजिए, तो गुरुजी ने दो बार मोर की तेज आवाज़ मुझे सुनवाई विसर्जन से पहले, क्योंकि रात हो चुकी थी, 7:30 का समय हो चुका था। तो उसके लिए भी अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे इंद्रधनुष के दर्शन करवाने के लिए आपका अनंतम कोटि शुक्राना। मैं अपने पति अंकल की ओर से, अपने बेटे की ओर से, अपनी बेटी की ओर से और अपनी ओर से अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। अभी इस वक्त मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, मेरी बॉडी बहुत टायर्ड है, क्योंकि मैं लगातार 15 दिन से शिफ्टिंग और इस सब में व्यस्त हूँ। बीच में गजानन महाराज का भी मुझे पूजा पाठ वगैरह थोड़ा बहुत करना ही था, तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाई गुरुपा। उसके लिए मैं बहुत बहुत सॉरी मांगती हूँ। और बाकी जो मेरे ऊपर पूर्णिमा के दिन मारण क्रिया वगैरह भेजी गई है गुरुपा, आपने सत्संग सुनाकर जो कष्ट कर पाया है, इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना है गुरुपा। आप मुझे प्रोटेक्शन दीजिए, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, बहुत थकी हुई हूँ। मेरे बच्चों को भी सुरक्षा प्रदान करिए, मेरे बेटे पर जो भी कष्ट है उसे काट दीजिए गुरुपा, और उसके साथ ही रहिए, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार से गुरु नाना बुलाता है और आपका मंत्र जाप भी करता है। और मेरी बेटी भी यहाँ पर फुल फेथ रखती है। हे गुरुपा, मेरे दोनों बच्चों के साथ रहिए, मेरे पति अंकल को भी संभालिए, क्योंकि अभी हम बहुत थक गए हैं शिफ्टिंग में और इन सब चीज़ों से। और बस आपकी कृपा बनी रहे। हमारे ऊपर जो मारण क्रिया हुई उसका असर हमारे इलेक्ट्रिक सामान पर हुआ है गुरुपा। हमारा आरओ और छोटा वाला फ्रिज एक ही दिन में ख़राब हुए हैं। वो ऐसा क्यों हुआ मैं नहीं जानती गुरुपा, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा हर पल मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे पति अंकल की रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। माँ काली ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। हे माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो हमें संभाल रही हो मैया। मैं आपको आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, अपने पति अंकल की ओर से, अपने दोनों बच्चों की ओर से, अपने परिवार की ओर से, और अपनी माँ की ओर से, अपने माँ के परिवार की ओर से, अपने सास ससुर की ओर से, सबकी ओर से पिता पूर्वजों से क्षमा चाहती हूँ, कुलदेवी माता से क्षमा चाहती हूँ। आप सब कृपा करके मुझ पर कृपा बनाए रखें, मेरे परिवार को अपने आंचल में समेट कर रखे हे गुरुपा। और सुमन आंटी से मेरे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जो उन्होंने सत्संग सेवा शुरू की है उसमें अपना जो भी कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहती हूँ वो मैं अवश्य करूँगी। थोड़ा सा समय लग रहा है आंटी जी, मेरे अकाउंट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो जैसे ही वो सब क्लियर होगा वो मैं तुरंत करूँगी।
और अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी की सत्संग सेवा शुरू करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं। अमृत वेला सत्संग कर रही हूँ मैं। सभी संगत को जय गुरु जी। सुमन आंटी जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा, मैं आपके सत्संग सुनती थी तो मैं उसमें जब और संगत बोलती थी कि मैंने आज ब्लू बटरफ्लाई देखी तो मैं भी सोचती थी मैंने तो ब्लू बटरफ्लाई कभी देखी नहीं, मुझे कब देखने को मिलेगी। तो कल गुरुपा ने ब्लू बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और भी कलर की बटरफ्लाई थी, ब्राउन, ब्लैक, डॉट में येलो, वाइट, बहुत सारी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग आपने दी गुरुपा। और सारे रास्ते मुझे बटरफ्लाई दिखाई देती रही, आप साथ साथ ही थे मेरे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पूरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। और कल इतवार से पितृपक्ष भी शुरू हो गए हैं, तो मैं अपने सभी पितरों को, अपने पितृदेवों को शुक्राना करती हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि वो अपनी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हमेशा बना के रखें। जो भी हमसे गलती हुई है या मेरे परिवार से कोई गलती हुई है तो उसके लिए आप हमें क्षमा कर दें। और जो भी कुछ आपको, जो भी हमारे से जो भी भूल हो गई है या कुछ ऐसा है जो हम भूल गए हैं, तो आप हमें सपनों में दर्शन देकर हमें बताएं कि हमसे क्या गलती हुई है और बताएं कि उसे कैसे सुधारें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे जो ये संदेश हैं ठीक से समझ नहीं आते, तो आप मुझे साफ साफ समझाएं कि क्या करना है, कैसे करना है। घुमा फिरा के मुझको समझ में नहीं आ पाता, और जब समझ में आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसीलिए मैं अपने पितृदेव से बोलूँगी कि वो जो भी है आप हमें बताएं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना कर रखें हमेशा हमेशा के लिए। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि शब्द नहीं आ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कभी ना ख़त्म होने वाला शुक्राना। और सभी देवी देवताओं को मेरा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे भक्तियों की तरफ से आपको शुक्राना, सब की तरफ से आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा हर वक्त हमारे साथ है। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने हमें अपना संगत बनाया। गुरु जी, सत्संग ये है, बेटे का कल 7 सितंबर को बर्थडे था। गुरु जी ने उसको ब्लेस किया हुआ है 7 नंबर के साथ। और संगत जी, उसको कल थोड़ा फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गई। मैं बाहर कहीं काम से गया हुआ था, शाम को वापस आया तो गुरु जी से अरदास की, गुरु जी इसको, बेटे को, आपका पोता है, इसको थोड़ा ठीक कर दो, जो भी कष्ट आया दूर करो गुरु जी महाराज। उसका नेक्स्ट डे 8 को एग्ज़ाम था। बाकी आपकी मर्जी गुरु जी महाराज।
अगर आपको लगता है वो एग्ज़ाम देने जाए तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो गुरुजी आज मॉर्निंग उसका संगत जी फ़ीवर तो उतर गया, पर वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एग्ज़ाम देने जाए। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने बेटे को ठीक किया। आप ही की कृपा से सजे हम हैं गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी से अरदास करता हूँ सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं। जो ये पंजाब में और सब जगह पे बारिश की वजह से बाढ़ आई हुई है, उन लोगों की भी रक्षा करें गुरुजी महाराज। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करें। सारी संगत पे, सुमन आंटी जी पे, सब पे अपनी मेहर करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सुबह मॉर्निंग जब उठ के मैंने फेसबुक को ओपन किया तो मेरे को एक मैसेज यही आया कि तेरे बेटे का कष्ट दूर हो गया है, 4 मिनट के लिए सत्संग कर। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने बेटे का कष्ट निवारण किया। ऐसे ही सबके कष्ट निवारण करो गुरु जी महाराज। जैसे आपको ठीक लगता है गुरु जी महाराज वैसे करो। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना और उन्हें हमेशा आप इसी तरह से अभी सभी संगत के सत्संगों को बड़े प्रेम से, बड़े ही श्रद्धा भाव से गुरुपा के पावन श्री चरणों तक पहुँचाती हैं। उसके लिए उनका दिलो जान से अनंतम शुक्राना है। सुमन जी की हर विश पूरी करना गुरुपा। और इसी के साथ ही मैं गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, गुरुपा का अनंत अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा ने आज हमें अपने घर पे जो है कल सैटरडे को हम आए हैं और घर बहुत ही अच्छे से गुरुपा ने करवाया है। एकदम चेंज हो गया। इवन जब मेरी हेल्पर आई तो वो घर देखते ही बोली आपका घर तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो मैंने उसको बोला, क्योंकि वो जानती है कि गुरुपा की महिमा, क्योंकि उसी की कज़न को गुरुपा ने बचाया था। तो मैंने उसको कहा कि देखो फिलीपींस की है वो, मेरे गुरुपा ने ये सब किया है, उन्हीं की निगरानी में सब हुआ है। तो गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना है। और गुरुपा आपको और भी शुक्राना है। हम सारे काम में लगे रहे। गुरुपा ने थोड़ा सा मेरी तबीयत थकान से हो गई थी, अजीब सी हो रही थी, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके गुरुपा ने हिम्मत दी और मैंने सारा काम मोस्टली ने मतलब काफ़ी कर लिया है। बस थोड़ा बहुत रहता है। और बहुत सुबह से लगी पड़ी थी। और इस कल मैं ज़्यादा सत्संग भी नहीं सुन पाई, क्योंकि सत्संग सुनने में कभी फिर ढंग से ध्यान नहीं जाता तो मुश्किल होती है। तो मैंने इसलिए कल नहीं सुन पाई और बिजी रहा पूरा दिन। आज भी ऐसे ही हुआ, बस सुमन जी का एक ही सत्संग मैंने सुना था और बस उसके बाद कोई सत्संग नहीं सुना। गुरु सुमन जी का वही सत्संग जो उन्होंने गुरु घर पर सॉरी की टीचर्स डे के दिन किया था, वही मैंने सुना। तो गुरुपा का भी अनंतम शुक्राना है कि गुरुपा की महिमा इतनी अपरंपार है कि मैं सोच रही थी अभी मेरे हस्बैंड अंकल है मंडे को वो चलने चले जाएंगे, और तो फिर मेरे को बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे अकेले करने पड़ेंगे, और वैसे मैं अकेले कर ही रही थी। तो मैं सोच रही थी कैसे होगा, इतना टायर्ड हो गया है काम करते करते। तो अचानक ही यहाँ पर क्या हुआ कि मंडे को मेरे हस्बैंड को सुबह जाना था, और यहाँ पर एक टाइफून आ गया है, जिससे कि बहुत बारिश और बहुत वैसा मौसम होता है, जैसे बहुत हवा, तो वो उसके लिए सिग्नल लग जाता है। तो सिग्नल नंबर 8 लगता था, सबकी छुट्टी हो जाती है। तो उन्होंने सिग्नल नंबर 8 लगा दिया और लिखा है कि वो सुबह 11 बजे तक रहेगा, और 11 बजे बाद वो 11 बजे वो ख़त्म होता है, तो उसके 2 घंटे के अंदर ऑफिस पहुँचना होता है। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना, आपने मेरी मन की बात सुनी और आपने टाइफून में नहीं जाती उस नुकसान, बट फिर भी टाइफून हुआ तो मेरे को टाइम मिल गया थोड़ा। अभी मैं सारा काम निपटा के अभी रात के 2 बज रहे हैं हांगकांग में, और इस वक्त मैं शुक्राना कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं सोऊंगी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अमृत वेला अभी हो जाता है, मैंने अभी क्योंकि ग्रहण भी था, तो भगवान को सबको नहला के और उनको भोग लगा के दिया जला के मैं अभी गुरुपा का मंत्र जाप करके शुक्राना करके सोने जा रही हूँ। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने इस तरह से कल के दिन का आधा दिन मतलब चलो हाफ डे हमको एक्स्ट्रा दे दिया, जिससे कि हम थोड़ा टायर्डनेस कम हो गई, क्योंकि काम में लगातार लगने से अभी 2 ढाई बजे सोने से तो सुबह 2-3 बजे उठना तो इम्पॉसिबल, मतलब पॉसिबल तो होगा लेकिन टायर्ड होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी निगरानी में सब कुछ हुआ, आपने इतनी हिम्मत दी और आपने टाइम भी अरेंज कर दिया, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है। आपने हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है, इसके लिए शुक्राना है।
गुरुपा बस ये नया घर में आप आए हो, ये घर में सभी कुछ अच्छा रहे और मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ। गुरुपा पितृपक्ष है आज 7 तारीख, मतलब 8 तो 8 तारीख है, दूसरा हो गया है। पितृपक्षों में हमारे जो भी पितर हैं, मेरे हस्बैंड के साइड के पितर और हमारे साइड की मेरी मम्मा के साइड, मेरे पिता के साइड, मेरे मदर इन लॉ के, मेरे सिस्टर इन लॉ के साइड, मेरे हस्बैंड अंकल के पापा के साइड, जो भी जितने भी पितृ देव हैं जिनका जाने अनजाने में उन्होंने मेरे इन लॉज, मेरे ससुर जी और सास जी और उनसे या हमारे परिवार में किसी से भी कोई भूल हुई हो, उनको याद करने में, उनकी सेवा या उनको सिमरन करने में उनके जो भी कुछ कमी रह गई हो उसको क्षमा कर, जाने अनजाने में उन्होंने किसी को भी दुख पहुँचाया हो या हमने पहुँचाया हो तो हमको क्षमा कर देना। गुरुपा हम अपने पितरों से बहुत प्यार करते हैं और मैं चाहती हूँ कि वो आपके सिर चरणों में रहें और उन्हें वहाँ किसी चीज़ की कमी ना हो। मेरे दोनों पापा आपके पास हैं और मेरी जो है नाना जी, दादाजी और दादी माँ, दादाजी दोनों आपके पास हैं। मेरी बुआ जी आपके पास है, मेरी बुआ का बेटा आपके पास है। बहुत सारे जो है वो आपके पास पहुँच गए हैं। गुरुपा उन सब की रक्षा कीजिए, उन सबको सदा खुश रखिए, उनका आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। हम उनके हमेशा याद करते रहें और उनके याद में सबका भला करते रहें। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना है कि आपने हमें ऐसी सोच दी है और हमें अपने पितरों को हमेशा पितृपक्ष में उन्हें किसी चीज़ की किसी चीज़ की कमी ना हो, वो हमेशा वहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें और सब हमें इसी तरह से आशीर्वाद भेजते रहें। जय गुरु जी। मेरे पितरों का अंतिम शुक्राना है, उनकी कृपा से भी हम ये नए घर में आए और तब घर नया होके आया है और हम इसमें आ गए हैं, सब कुछ काम ठीक से हो गया है। इसके लिए गुरुपा का और पितृ देवताओं का भी अनंतम अंतम शुक्राना है। गुरुपा के पावन महामंत्र से मैं आज के सत्संग कहीं पर समर्पण करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती होगी तो गुरु जी, सुमन जी और संगत जी मुझे पर क्षमा कर देना। सुमन जी और उनके परिवार पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखना। सुमन जी आपका अनंतम शुक्राना है, जब मैंने अपने सत्संग को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इस तरह से हमारे सत्संग को हमेशा श्री प्रसन्न तक पहुँचाती हैं। गुरुपा के इसके अंतम शुक्राना है। आपका सत्संग बहुत अच्छा हुआ है और गुरुपा आपको ब्लेस करने आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का और आपका बहुत शुक्राना कि आपने हमसे सत्संग सुनाया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का समापन करते हैं। संगत जी कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो गुरु जी, संगत जी और सुमन जी तो मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा सर्वत का भला करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरलता भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, सुमन आंटी को भी जय गुरु जी। सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी और गुरु जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने हमें ब्लेस किया है। चलिए संगत जी अपने शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी कोलकाता से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग है, मेरी एक प्रॉपर्टी थी उसको सेल करना था और एक पेपर की बहुत इमरजेंसी थी कि उस पेपर के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता है। तो उन्होंने बोला कि बिल्डिंग में से किसी से मांग लीजिए आप, और बिल्डिंग में भी कोई देने को तैयार नहीं हुआ। गुरुजी महाराज तो सब जानते हैं और बड़ी दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ़ हुआ हम लोगों को। अब क्या होगा, अब तो होगा ही नहीं हम लोग का ये काम। फिर अचानक एक पेपर मिला ऐसा, हम थोड़ी सी उम्मीद जागी कि शायद इससे काम बन जाए। गुरुजी आप गुरुजी से अरदास करते हुए वो पेपर हम लोगों ने उनको दिया सामने वाली पार्टी को, और उस पेपर से उनका काम बन गया। गुरुजी ने हमारी ये छोटी सी अरदास सुनी, उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी अनंत कोटि शुक्राना। गुरुजी आपका अनंत अनंतम 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 बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं गुरुजी उतना कम है गुरुजी। फिर मेरा दूसरा सत्संग है 28 अगस्त का। 28 अगस्त की रात को मेरे पेट में दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। नींद में से ही दर्द हो रहा था, तो नींद में से मैं उठी और फ्रिज में गई। संजोग से मेरे हस्बैंड अंकल कोल्ड ड्रिंक लाए थे, तो मैंने सोचा कि हो सकता है गैस वैस हो गई हो तो कोल्ड ड्रिंक निकाल के पी लेते हैं। अब मैं कोल्ड ड्रिंक निकाल के जैसे निकाला ना, उसके बाद मुझे क्या हुआ, गिर गई मैं। गिरी भी मुझे याद नहीं है, मैं गिरी पड़ी थी। फिर मेरी लड़की बेटी उठी, मेरी सांस की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वो उठे, वो फिर अपने पापा को जगाई, बोली मम्मी गिरी पड़ी हुई है। फिर मेरे पास वो आई, फिर मुझे वो आवाज़ दी। थोड़ा एक बार आवाज़ दी तो मुझे थोड़ा सा सेंस आया, फिर दूसरी बार आवाज़ दी तो एकदम अचानक से उठ के मैं बैठ गई। बोली मुझे क्या हुआ, यहाँ पे मैं कैसे आ गई। गुरुजी जाने कौन सा कष्ट मेरा काटा आपने, जाने कौन सी नेगेटिविटी थी जो आपने दूर की। थोड़े से चोट चपेट से चोट लगी, बहुत चोट लगी। सिर पे चोट लगी, ओंठ पे चोट लगी, नाक पे चोट लगी और कमर में, हाथ में, मतलब ऐसे चोट लगी, बहुत सारी चोटें हैं।
गुरुजी, लेकिन उस छोटी सी चोट के कारण गुरुजी मेरा कौन सा संकट काटा आपने, ये आप ही जाने गुरुजी, मैं तो जान भी नहीं सकती, मैं मूर्ख हूँ गुरुजी, मैं इतना नहीं जान सकती गुरुजी, लेकिन आपका उसमें भी अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, मुझे कहीं फटा नहीं, खून नहीं आया, नहीं तो रात को कहाँ लोग जाता, कहाँ डॉक्टर को खोजता भाई भगवान, उससे आपने मेरी रक्षा की, इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है आपके लिए, तो शुक्राना शब्द ही छोटा पड़ता है गुरुजी, फिर भी हम लोग शुक्राना करने में देर कर देते हैं गुरुजी। कल कल भी रात में बहुत पेट में दर्द हो रहा था, पता नहीं सीने से लेके गले तक इतना दर्द हो रहा है, कल संडे था, 8 बजे थी, और 8 बजे से लेके 2-3 बजे तक बहुत दर्द हुआ गुरुजी, बहुत दर्द हुआ, चंदन लेप लगाया, जल प्रसाद पिया, इनो पिया, सोडा पिया, दवा खाया, कोई असर नहीं कर रहा था, इतना भयंकर दर्द गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी सारे कष्टों को हरो, सारी संगत का भला करो गुरुजी, सबको अच्छी सेहत प्रदान करो, सुमन आंटी को भी खूब ब्लेस करो, उनको भी अच्छी सेहत प्रदान करो, सारी संगत को सेहत प्रदान करो गुरुजी, सेहत है तो सब है गुरुजी, सेहत ही नहीं रहती है तो फिर कुछ काम में मन नहीं लगता है गुरुजी, सब कुछ होते हुए भी वो सब बेकार है, सबसे ज़रूरी तो सेहत है गुरुजी, सारी संगत को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, हमको भी हेल्थ ब्लेस करो, हमारे सारे परिवार को हेल्थ ब्लेस करो, हमारी सारी संगत फैमिली को हेल्थ ब्लेस करो गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग का विश्राम देती हूँ, नेक्स्ट सत्संग के साथ आपसे फिर उपस्थित होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय सोना आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुकराना सत्संग शेयर करन लगी हाँ। गुरु जी के मंत्र जापना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब तो, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना मालका, तेरा लख लख शुकराना पिता जी। संगत जी, गुरु जी दे बहुत मैसेज मैनूं आउंदे आ कि पुत्तर शुकराना सत्संग कर, पता नहीं की गल आ, महीना ही हो गया, मन ही नहीं करता शुकराना सत्संग करन नूं, बहनी भी आ, पता नहीं ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵਾ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਊਗਾ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਜਮਰਾਜ ਖੜੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੇਜੇ ਵੇ। ਮਾਲਕਾ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਡੋਰੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਡੋਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਤਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਰਾਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਵਾ, ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। 30 ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਛੋਟੇ 27-28 ਸਾਲ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੋਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਗਰ ਲਾਏ ਜਮਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਉਲਟਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਰੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡੋਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵੇਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਏ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। 1 ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਫੜ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ। ਇੰਨੀ ਬਰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਕਿ ਠਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਠਾਹ ਨੂੰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਇਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਸਾਡੇ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕਰ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਪਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਂਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਲਟੇ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਕੂਨ ਥੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋਊ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਕਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੜਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਹੁਣ ਗੜੀ ਨੌ ਪੁੱਤ, ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਦੋਤਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਲੇ ਕਟਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆ ਗਵਾਂਢਣ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸੀ, ਆ ਕੁਛ ਸੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀਦਾ, ਭਾਲੀਦਾ, ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਲਟ ਕੇ ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਨੇ। ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਹ ਭਾਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਛੇਤੀ ਕਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਾ ਗਵਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਸੁਣ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਟਾਫਟ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਡੋਰੀਆਂ ਹੱਥ ਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਹਰੋਂ, 1 ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਨਹੀਂ ਸਤੰਬਰ, 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ 6 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ 5 ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਰਾਤ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਐਰਕਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੱਢਣ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੋ,
ਡਿਊਟੀ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਜੇ ਕਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਕਟਵਾਇਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਵਾਲੀ ਬਵਾਸੀਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੜ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬੰਨੇ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਣ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਮੀ ਦੰਦੀ ਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਾ ਮਾਸਾ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ ਕਰਤਾ। ਮਾਲਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਮਾਲਕ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਵੰਜਾਰੇ ਆ ਅਸੀਂ, 2 ਟੁੱਕ ਦੇ ਵੰਜਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਈ ਬੇਟਾ ਤੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਲਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣਵਾ ਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ, ਸਭ ਨੀ ਥਾਈ ਸੋਮਿਆ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਮਾਲਕਾ। ਹਰ ਰਾਖਾ ਹਰ ਥਾਂ ਰਾਖੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਲੱਭ, ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਘਰ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ। ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਮਾਲਕਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਮੀਰ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੂਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੂਗੀ। ਬਾਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਭਰ ਆਂਦੇ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਈ ਬਾਬਲ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਪਛਤਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੀ ਰੱਖੀ ਬਾਬਲਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਰੱਖੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ ਬਾਬਲਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂ ਮੈਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵੰਡ ਕੇ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਈਦੀ ਆ, ਥੋੜੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹੋ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੋ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ ਜੀ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਤਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ, ਲੀਵਰ ਦੇ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੋਜਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਉਹ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਵਾਰੀ ਜਲ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਆਉਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਠੇ ਬਹੁਤ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖਲੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣ, ਬਸ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਵਾ। 3 ਕਮਰੇ, 1 ਰਸੋਈ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁੰਦੀ ਆ ਛੱਤ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਬੈਠੀ ਆ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰੁੜ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਤੀ ਨੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਾ, ਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਲਾ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਚਲੋ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲਾਤੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਪਾਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਪਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਮਾਲਕਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆ, 1-2 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਆਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु। शुकराना पिता जी, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुकराना मेरे गुरु बाबा जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी। सुमन आंटी जी, गुरु बाबा जी आपको खूब खूब ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ है, वेल्थ है, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर रखे और आपके चैनल को भी खूब खूब ब्लेस करे, आपका चैनल खूब प्रगति करे। जय गुरु जी। और सब संगत परिवार की भी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, उनके सारे दुखों को गुरु बाबा जी दूर करे और ब्लैक मैजिक वालों से सबको छुटकारा दे। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी ये शुक्राना मेरा आज का जो है सोमवार का शुक्राना है, गुरु बाबा जी का दिन है और मैं अपने गुरु मंत्र के साथ इसको शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। गुरु पापा जी जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आनी होती है तो गुरु पापा जी बटरफ्लाई के रूप में अंग संग सहाय होते हैं। क्योंकि संगत जी एक संगत ही मुझे मिले थे, मेरे आंटी के नून है, तो वैसे तो मुझे पता था कि गुरु पापा जी ब्लू बटरफ्लाई के रूप में जब दिखती है तो वो साक्षात गुरु पापा होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्लैक और वाइट जैसे और हल्का हल्का सा ब्लू होता है तो वो भी गुरु पापा जी की साक्षात दर्शन होते हैं। तो संगत जी जैसे कि मैंने बताया है कि जब भी गाँव जाती हूँ तो मुझे पहले तो बहुत डर लगता था, अब मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि गुरु बाबा जी मेरे साथ होते हैं, अंग संग सहाय होते हैं और जब भी हम जाते हैं तो
जाते समय अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। बटरफ्लाई के रूप में गुरु पापा जी आगे पीछे घूमते रहते हैं संगत जी। तो संगत जी इसी तरह से हमारे घर में अनुष्ठान था, 5-6 दिन का था। और इसी बीच ये जो वो औरत है, गुरु पापा ने बताया है कि बताया क्या है, मुझे पहले भी पता था, गुरु पापा ने भी बताया है। तो जब भी वो आती है तो कुछ ना कुछ वो करती है वो संगत जी कि वो उपासना कुछ भी आधे अधूरे में मेरी छूट जाती है और लोगों की नहीं। जैसे पाठ थे तो कोई विघ्न ही पड़ जाता था, जैसे अपनी ही प्रॉब्लम हो जाती थी। तो इस टाइम भी मुझे कुछ ऐसा ही हुआ था। हालांकि अभी बहुत दिन थे, 11 तारीख की मेरी अपनी डेट की का टाइम था, लेकिन संगत जी मुझे जो है वो 28-29 मतलब 1-2 तारीख को ही मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मुझे अब प्रॉब्लम होने वाली है। तो संगत जी गुरु पापा से मैंने अरदास की, गुरु पापा जी ये अनुष्ठान अच्छे से मैं रह पाऊँ, कर पाऊँ, नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी। और इतनी बारिश हो रही थी संगत जी, 5-6 दिन जितने दिन पाठ रहे उतने दिन इतनी बारिश हुई कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और जिस दिन तो हवन हुआ उस दिन तो इतनी हवन हो रहा था, तो ऐसी जोर की बारिश भी हुई और हवा भी चली। तो संगत जी गुरु पापा ने फिर भी साथ दिया। जब दूसरे और तीसरे दिन का अनुष्ठान था तो गुरु पापा ने साक्षात बटरफ्लाई, दो बड़ी ब्लैक और हल्के हल्के ब्लू के डॉट्स भी थे और वाइट भी थे। इतनी सुंदर थी कि गुरु पापा की नातिन को बुला के मैंने कहा कि देखो देखो, गुरु पापा साक्षात हमारे साथ है और हमें दर्शन देने आए हैं। तो संगत जी उसने भी दर्शन किए। वैसे तो बटरफ्लाई बहुत सारी थी, बहुत सारी उड़ रही थी। कोई ब्लू कलर की थी, हल्के लाइट ब्लू कलर की थी, लेकिन जो ब्लैक कलर और ब्लैक और वाइट और ब्लू डॉट्स वाली थी वो 2 बड़ी बटरफ्लाई थी संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा जी, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना है और ये एहसास दिलाने का शुक्राना कि मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन क्यों करती है। तो संगत जी मैंने दवाई तो खाई, लेकिन फिर भी दवाई का भी कोई असर नहीं होता था। और इस बार में मैंने दवाई खाई संगत जी, ताकि मुझे डेट ना आए। और गुरु पापा ने मेरा साथ दिया। गुरु पापा के साथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, इसलिए गुरु पापा का अनंतम बार शुक्राना है। और इतना ही नहीं संगत जी, वो ब्लैक मैजिक करने से हटती नहीं हैं। तो 2 बच्चे बीमार हो गए थे, तो बहाना तो ठंड ठंड का ही लगा, लेकिन जैसी कंडीशन थी तो मैं तो समझ गई थी कि उसका ही प्लान था, क्योंकि हवन होने के बाद मैं आ गई थी। और दूसरे दिन तीसरे दिन घर से ही उसकी जो देवरानी थी वो अपनी पोती को लेके आई यहाँ। और उसके बाद मेरी राइट टांग में नील पड़ा संगत जी। मुझे प्रॉब्लम बहुत हुई, लेकिन मैंने मंत्र जाप जारी रखा, गुरु पापा को अपने साथ रखा, तो गुरु पापा ने उस मुश्किल से भी निकाला है गुरु पापा जी। और जो ये सरसों के दाने हैं मिलते हैं मेरे बेड के ऊपर, इन सब से भी आप छुटकारा दिला दीजिए गुरु पापा जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है इन सब नेगेटिविटी से निकालने के लिए। और कुछ भी होने वाला होता है तो गुरु पापा पहले ही मुझे सचेत करवा देते हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु पापा जी। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपकी नातिन की तरफ से भी शुक्राना है और मेरे मायके परिवार की तरफ से भी शुक्राना है, ससुराल पक्ष के परिवार की तरफ से भी शुक्राना है, मेरी बहन और उसके परिवार की तरफ से भी शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। और गुरु पापा जी सभी आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ जिनका भी किसी भी जन्म में मैंने बुरा किया हो, बुरा सोचा हो, और सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ। गुरु पापा जी इन सब को सद्बुद्धि दो जो नेगेटिविटी करने वाले हैं, कि अपने कर्मों को सुधारे। अब समय बहुत कम है, विनाश सामने खड़ा है, थोड़ी सी सद्बुद्धि अक्ल आए उनको भी कि हमें ये जन्म तो हमने अपना व्यर्थ गवा दिया है, आगे के लिए तो अपना कुछ अच्छा करे, अपने कुछ कर्म सुधारे। गुरु पापा जी सब आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ, पांचों तत्वों से क्षमा मांगती हूँ और सबको क्षमा करती हूँ जिन्होंने भी मेरा बुरा किया हो। गुरु पापा जी इनको सद्बुद्धि दो, अब सहन नहीं होता है, आपको सब पता है, सब डिटेल से मैं नहीं बता सकती हूँ, आप जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सुमन आंटी को जय गुरु जी। संगत जी सोमवार के दिन का दिन नहीं संगत जी, सॉरी संगत जी, ये अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है।
अभी 4 साढ़े 4 बजा है संगत जी, 4:26 हुआ है। गुरु महाराज कहते हैं कि शुक्राना कर, तुम सिर्फ शुक्राना कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। तो संगत जी, गुरु महाराज के स्वरूप के सामने बैठकर हमें शुक्राना कर रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज की मर्जी से संगत जी, हम यूपी से बोल रहे हैं संगत जी। गुरु महाराज बहुत बड़े-बड़े कष्ट को संगत जी आने से पहले संगत जी उसे गुरु महाराज भस्म किए हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का तो जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है संगत जी। गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरु महाराज के जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है संगत जी। बहुत बड़ी-बड़ी बीमारी जो है संगत जी, हमको था संगत जी, वो सब हमारे गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा कर वो सारी बीमारियों को गुरु महाराज ने खत्म किए हैं संगत जी। संगत जी, पूरे परिवार का सुरक्षा गुरु महाराज के हाथ में है संगत जी। पूरे परिवार को संभाले हुए हैं, उसका लख लख बार शुक्राना करते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज का जितना भी हम बड़ाई करें उनका वो भी कम है संगत जी। अब गुरु महाराज कहते हैं शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर, तो हमको समझ में नहीं आता है संगत जी कि कौन सा शुक्राना हम गुरु पिता का दिल से करें। तो ये तो हमारे गुरु महाराज की मर्जी है संगत जी, जो बुलवाते हैं वही हम बोलते हैं संगत जी। और तो संगत जी बोलते-बोलते इतना लंबा हो जाता है कि हम नहीं चाहते हैं कि इतना बड़ा-बड़ा शुक्राना सत्संग करें। 5 मिनट 10 मिनट गुरु महाराज का ही शुक्राना करना चाहते हैं संगत जी, लेकिन बोलते-बोलते सब पता भी नहीं चलता है। तो गुरु महाराज हमें माफ़ कीजिएगा। और सुमन आंटी जी माफ़ कीजिएगा। चाहते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट ही हम गुरु महाराज का शुक्राना करें। गुरु पिता तो गुरु पिता का दया तो सबके ऊपर है संगत जी, मेहर बरसा रहे हैं, दया बरसा रहे हैं, पूरी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं संगत जी, तितली रूप में दर्शन देते हैं। तो गुरु महाराज का इसका भी बहुत बड़ा ब्लेसिंग है संगत जी। कहते हैं गुरु महाराज की शुक्राना करने वाला का भी भला होता है और सुनने वाला का भी भला होता है। तो गुरु पिता का शुक्राना से बहुत प्यार है संगत जी, तो गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए। गुरु महाराज के चरणों में डालते रहिए, गुरु महाराज से स्वीकार करें गुरु महाराज। गुरु पिता जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं संगत जी। शुक्राना सत्संग तो बहुत है संगत जी, लेकिन जब गुरु पिता की मर्जी होगा तभी हम ये कर सकते हैं संगत जी। गुरु महाराज बहुत बड़े-बड़े कष्टों से हमको गुरु महाराज ने वो कष्ट को दूर करके संगत जी जीवन दान दिए हैं। ये गुरु महाराज कितने बार हमको लाइफ ब्लेस किए हैं संगत जी। सैटिका ऐसे बीमारी को संगत जी गुरु महाराज ने उसको दूर किए हैं संगत जी। हाथों में, दोनों हाथों में भी गाँठ था संगत जी। उसको भी गुरु महाराज ने सत्संग सुनवाकर वो बीमारी को संगत जी खत्म हो गया है। डिप्रेशन था, सर में दर्द रहता था संगत जी। बहुत सारी बीमारियाँ था संगत जी। वो धीरे-धीरे सब सत्संग सुन-सुन कर संगत जी, सुनवा कर गुरु महाराज दूर किए संगत जी। तो ये बहू की तरफ से शुक्राना सत्संग है। गुरु महाराज उसे भी ब्लेस कीजिए। और बेटी की तरफ से भी गुरु महाराज अरदास कर रहे हैं। अब उसे भी आप ही देखिए गुरु महाराज। जैसे हमको इतने बड़े-बड़े कष्ट, इतने बड़े-बड़े बीमारियों गुरु महाराज सत्संग सुनवाकर उसको दूर किए गुरु महाराज। उसी तरह आप अपनी दोनों बेटियों को भी गुरु महाराज आपके ही हवाले है गुरु महाराज। एगो का बचदानी में गाँठें है गुरु महाराज, उसे भी आप देखिए। एक बेटी को गुरु महाराज जिसको कहते हैं कि बवासीर हो जाता है,
वाइस है, वो भी बहुत परेशान है गुरु महाराज। मानने का तो गुरु महाराज आपको कोई नहीं मानता है गुरु महाराज, लेकिन आपकी बेटी गुरु महाराज मानती है। तो कहते हैं कि परिवार से एक भी सदस्य अगर हमको मेरे पास आ जाए, हमसे जुड़ जाए, तो पूरे परिवार का सुरक्षा हम करते हैं, पूरे परिवार को हम ब्लेस करते हैं। तो गुरु महाराज बहुत परेशान है गुरु महाराज। अभी वो परेशानी से जूझ रही है गुरु महाराज, कहती है कि अब हमको ऑपरेशन करवाने का टाइम आ गया है, बहुत हम परेशान हैं। तो गुरु महाराज आप ही देखिए गुरुपा, आप ही संभालिए गुरुपा। हम तो सिर्फ गुरु महाराज आपके चरणों की दासी अरदास ही करेंगे गुरु महाराज। करने वाले कराने वाले तो हमारे गुरु पिता ही हैं संगत जी। तो गुरु महाराज के हाथ में सब कुछ है संगत जी, और जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं संगत जी। तो आइए संगत जी, अब गुरु महाराज का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। सर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरु महाराज, बेटी बनाने का शुक्राना गुरु महाराज, चरणों में लगा के रखने का शुक्राना गुरु महाराज, कष्टों को दूर करने का शुक्राना गुरु महाराज, सर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरु महाराज, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु महाराज, पूरे परिवार को सुरक्षा करने का शुक्राना गुरु महाराज, दुखों को दूर करने का शुक्राना गुरु महाराज। जितना भी हम शुक्राना करें वो भी कम है गुरु महाराज। तो संगत जी, ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार कीजिए। आपकी मूर्ख नादान ना समझ बेटी है गुरु महाराज। बहुत बड़ा बड़ा शुक्राना सत्संग होता है गुरु महाराज। आपका शुक्राना में ही बहुत शक्ति है गुरु महाराज। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्ता भला। तो गुरु महाराज सबका सर्वत्ता भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए। संगत जी, कर भला तो हो भला। अगर दूसरे का भला करते हैं संगत जी, तो गुरु महाराज आप ही भला कर देते हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। सीताराम सीताराम सीताराम, हर हर महादेव हर हर महादेव। सतनाम श्री गुरु नानक, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। सुमन आंटी को भी खूब ब्लेसिंग दीजिए, उनके परिवार को, उनके बच्चों को खूब सुखमय शांतिमय, उनकी खुशियों से झोली भर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, आई लव यू गुरुपा। शुक्रिया 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 गुरु महाराज। थैंक यू गुरु महाराज। जो दिए उसका शुक्राना, जो दे कर ले लिए उसका भी शुक्राना, जो अभी है उसका भी शुक्राना। तो लख लख बार शुक्राना गुरु महाराज, बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।